kids, how are you? I hope you all are doing well, happy and healthy. So you all know टेक्नोलॉजी ने हमारी लाइफ कितनी चेंज कर दी है और इजी भी कर दी है. नाउ वी कैन रीड स्टडी एनीवेयर, कहीं भी बैठ के हम पढ़ सकते हैं. सो दैट इज़ द बेनिफिट ऑफ ऑनलाइन टीचिंग. आप कहीं भी बैठ के कुछ भी सर्च कर सकते हैं, कुछ भी पढ़ सकते हैं, कुछ भी सीख सकते हैं. So, you know me? I'm your new teacher. I will teach you maths and my name is पूजा. So, मैं आपको मैथ्स पढ़ाऊंगी और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें इजी वे में सिखाऊंगी. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. Shapes and patterns. So in this chapter we will read about different shapes and the pattern made from these shapes and numbers. Clear? तो इस chapter में हम shapes और patterns के बारे में पढ़ेंगे. तो first is points and line. What is a point? A point is an idea represented by a small dot. It is named by the capital letter of the English alphabet like A, B, C, D, etc. A point has no length, breadth, height, shape and size. It is the position only. So point की अपनी कोई length, breadth या height नहीं होती, ना कोई shape होता है. It just shows us a position like here. Point P, point R, point L, point M, point O. These are the different points. Next is line. It has no end point. It can be extended in both the direction. Line के कोई end point नहीं होता. आप दोनों direction में से कितना भी stretch कर सकते हैं या कितना भी इसको बढ़ा सकते हैं. So line here, line MN. So MN किसको represent करता है? Line को. Both side arrow means that can be extended. A line can be extended in both the direction endlessly. Next ray. A ray can be extended only in one direction. It has only one end point. Okay. So जो रे है उसको हम वन डायरेक्शन में एक्सटेंड कर सकते हैं. लाइक वन साइड एरो है, दैट मीन्स इट रिप्रेजेंट दैट इन दिस डायरेक्शन वी कैन एक्सटेंड इट एंड इट हैज़ वन एंड पॉइंट. लाइक हियर ए जो है एक एंड पॉइंट है, इसको इस डायरेक्शन में हम आगे नहीं बढ़ा सकते. क्लियर? नेक्स्ट इज लाइन सेगमेंट. लाइन सेगमेंट. सेगमेंट मीन्स पार्ट ऑफ समथिंग. It is the part of a line. किसी line का जो part होता है, एक part that is called line segment. It has a definite length and two end point. Line segment की एक definite length होगी जिसको measure कर सकते हैं and it has two end point. Like here, AB is a line segment. So हम इसे और ज़्यादा extend नहीं कर सकते. इसकी एक definite length होगी and it has two end point. Clear? Next, exercise 8.1. Draw a line segment joining the given points. Here, 2 points are given, C and D. We have to join them and draw a line segment. So, हम क्या करेंगे? C को D से join कर देंगे with the help of ruler. So, that is the line segment CD. इसी तरीके से बाकी सारे questions करेंगे. Next, match the solid shape to its name. Here, some solid shapes are given. We have to match them with their name. So, first shape you can see. First is what? First is cylinder. So हम सिलेंडर से मैच कर देंगे. क्लियर? नेक्स्ट, व्हाट शेप विल यू गेट इफ यू ट्रेस द आउटलाइन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट. यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट दे रखे हैं. अगर आप उसकी आउटलाइन को ट्रेस करेंगे तो आपको कौन सा शेप मिलेगा? क्लियर? लाइक अ डायस. डायस की अगर हम आउटलाइन को ट्रेस करेंगे वी विल गेट अ स्क्वायर शेप. क्लियर? तो इसी तरीके से आपको बाकी सारे क्वेश्चंस में भी लिखना है. नेक्स्ट, कॉर्नर्स एंड साइड्स. फर्स्ट इज रेक्टेंगल. रेक्टेंगल इज अ फोर साइड फिगर. इट हैज फोर कॉर्नर्स. इट्स साइड्स आर मेड अप ऑफ स्ट्रेट लाइन. रेक्टेंगल में फोर साइड्स होती है. 1 2 3 4. फोर साइड्स एंड फोर कॉर्नर्स. दीज आर द कॉर्नर्स. So rectangle has four sides and four corners and opposite sides equal होंगी. Means this and this side will be equal and this side will be equal. And side किससे बनी होती है? Line segment से. Straight line जो होंगी उससे बनी होगी. Clear? Next, square.
A square has 4 sides and 4 corners. Its sides are made up of straight line. Square also have, square में 4 sides होंगी, 1 2 3 and 4 and 4 corners होंगे. But in square all 4 जो lines हैं, sides हैं, वो क्या होंगी, equal होंगी. Clear? Next, triangle. A triangle has 3 sides and 3 corners. Its sides are also made up of straight line. So triangle में 3 corners होंगे and 3 sides होंगी, 1 2 3. Clear? जो sides हैं वो straight line से बनी होती है इसमें भी. Next, a circle. A circle has no sides, no corner. It is made up of curved line. सर्कल की कोई साइड नहीं होती, कोई कॉर्नर नहीं होता है, किससे बना होता है, कर्व लाइन से. क्लियर? नेक्स्ट, कर्व्ड एंड स्ट्रेट लाइन. नाउ विल फाइंड आउट कि कर्व और स्ट्रेट लाइन में क्या डिफरेंस होता है. सो हियर यू कैन सी दीज आर स्ट्रेट लाइंस एंड दीज आर कर्व लाइन. स्ट्रेट जा रही है स्ट्रेट लाइन, कर्व इस तरीके से. क्लियर? नेक्स्ट, वी कैन ड्रॉ स्ट्रेट लाइन एंड कर्व लाइन विद द हेल्प ऑफ द डॉट्स. बट लुक एट द फॉलोइंग डिजाइन. So we can draw the straight line and curve line with the help of dots. हम डॉट की हेल्प से स्ट्रेट लाइन भी बना सकते हैं और कर्व लाइन भी बना सकते हैं. Like here you can see the different design made up of curves and straight line are shown here. यहाँ पे आप देख रहे हो जितने भी शेप्स हैं, जितने भी डिज़ाइन है, वो किससे बना है, स्ट्रेट लाइन से बना है और कर्व लाइन से. So we can make plane shape with the help of the dots. इस तरीके से हम डॉट्स की हेल्प से प्लेन शेप बना सकते हैं. लुक एट द शेप गिवन बिलो. यहाँ पे आप देख रहे हैं कि डॉट की हेल्प से अलग अलग शेप बना रखे. दिस इज अ स्क्वायर, अ रेक्टेंगल, अ ट्राइंगल एंड अ स्क्वायर. ऑल दीज शेप्स आर मेड अप ऑफ हेल्प ऑफ दीज डॉट्स. क्लियर? नेक्स्ट, कॉर्नर, एजेस एंड फेसेस. सॉलिड शेप हैव फेसेस, एजेस एंड कॉर्नर्स. जितने भी सॉलिड शेप्स हैं उसमें फेसेस होंगी, एजेस होंगे और कॉर्नर होंगे. The surface of the solid shape that is called face. जो surface होती है वो क्या कहलाती है, face. The place where two faces are meet that is known as edge. That part is known as edge. जहाँ पे दोनों जो faces हैं वो meet करते हैं वो part क्या कहलाएगा, edge. The points where three edges meet that is called corners. Clear? So यहाँ पे आपको given है these are the faces. ये क्या हो जाएंगी, faces हो जाएंगी. These are the edges. ये जो है जहाँ पे मीट कर रही है फेसेस, दैट इज द एजेस. क्लियर? एंड दीज आर द कॉर्नर्स. ये क्या हो जाएंगे, कॉर्नर्स. एवरी फेस ऑफ द क्यूबॉइड इज रेक्टेंगल. क्यूबॉइड की जो फेसेस होती है, एवरी फेस क्या होती है, रेक्टेंगल. 6 फेसेस, 12 एजेस एंड 8 कॉर्नर्स. व्हेन वी टॉक अबाउट अ स्क्वायर, स्क्वायर हैज 6 फेसेस, 12 एजेस एंड 8 कॉर्नर्स. A cylinder has 3 faces. Cylinder की 3 faces होती हैं. It has 2 plane faces and 1 curve face. ये 2 plane faces हो जाएंगी and this is 1 curve face. Clear? So it has 3 faces, 2 edges and no corners. Clear? Next, a cone has 2 faces. Cone की भी 2 faces होती है. One face is plane and the other is curve. It has 2 faces, 1 edge and 1 corner. Clear? ये है हमारा कोन. कोन में क्या होता है, कोन जो है उसमें 2 फेसेस होती है. क्लियर? 1 फेस तो प्लेन होगी और दूसरी क्या होगी, कर्व होगी. सो दिस इज द प्लेन फेस एंड दिस इज द कर्व फेस. क्लियर? नेक्स्ट, स्फेयर. स्फेयर हैज ओनली 1 फेस. इट इज राउंड इन शेप. इट इज नीदर एज, इट हैज नीदर एज नॉर कॉर्नर्स. सो जो स्फेयर है उसमें क्या होगी, ओनली कर्व फेस होगी, कोई एज नहीं होगा, कोई कॉर्नर नहीं होगा. क्लियर? नेक्स्ट, एज कैन बी कर्व्ड और स्ट्रेट लाइन. एज जो है वो स्ट्रेट भी हो सकते हैं और कर्व भी हो सकते हैं. सो हियर यू कैन सी इन पिक्चर, फर्स्ट पिक्चर जो एजेस है वो क्या है, स्ट्रेट लाइन. एंड सेकंड पिक्चर एजेस आर कर्व लाइंस या कर्व एजेस है. नेक्स्ट इज एक्सरसाइज 8.2. लुक एट द फॉलोइंग डिजाइन एंड ड्रॉ द सेम डिजाइन. आपको डिजाइन देखना है एंड सेम डिजाइन ड्रॉ करना है. सो विल काउंट द नंबर ऑफ डॉट्स. सबसे पहले हम यहाँ पे 3 डॉट्स को ज्वाइन कर लेंगे, देन 2 डॉट्स, यहाँ पे भी 2 डॉट्स, देन अगेन 2, 2, देन 3, देन पहले 2 करेंगे हम इस तरीके से, 2, 2 एंड देन 3. एंड यहाँ पे हमें ट्राइंगल बनाना है इस तरीके से.
इस तरीके से हम डॉट्स काउंट करके शेप जो है डिजाइन ड्रॉ कर सकते हैं. क्लियर? नेक्स्ट, look at the following object and fill in the blanks. So here you can see object का shape क्या है? Shape is cuboid. If we talk about cuboid, cuboid has 6 faces, 12 edges and 8 corners. तो इसी तरीके से आप बाकी सारे ऑब्जेक्ट में पहले शेप आइडेंटिफाई करेंगे and you will write its faces, edges and corners. Next, write T for true and F for false against each statement. अगर statement सही है तो you will write true. अगर गलत है you will write false. The corner is where two faces meet. Corner क्या होता है? जहाँ पे two faces meet करती है? No, that is false. Next, corner and sides. Take a square sheet of paper. इस तरीके का square sheet of paper लेंगे. Fold this paper at one corner as shown. It has one corner. So हमने ये किया क्या? One corner पे इसको इस तरीके से fold कर दिया जैसे हमें पिक्चर में दिखाया गया है. Now fold this paper at the second corner as shown. It has second corner. हमने यहाँ पे second corner में कर दिया. इसी तरीके से हमने third corner and fourth corner में किया. तो ये चारों corners हो गए. You know these shapes. Find how many corners and sides each have. So first shape, look at the shape. The shape is circle and you know circle have no sides, no corner. No corner, or you can write 0 corner, 0 side. I am writing here no corner, no side. Clear? Next, tangram. Tangram is a puzzle. Okay, Chinese puzzle. Tangram is a 1000-year-old Chinese puzzle. सोचो 1000-year-old मतलब कितनी पुरानी टेक्निक है. So that time भी लोग अवेयर थे शेप्स को लेके. It consists of a square cut into 7 shapes as one square, one parallelogram, 5 triangles, and 7 shapes can be resembled into an amazing figure of innovative design. So इसमें क्या होता है tangram में? एक स्क्वायर होता है जो किसमें होता है 7 शेप्स में कट होता है. वन स्क्वायर, इसमें एक जो शेप होगा वो क्या होगा? स्क्वायर होगा. क्लियर? वन पैरेललोग्राम होगा. एक क्या होगा? पैरेललोग्राम लाइक हियर. एंड 5 ट्राइंगल्स होंगे. 1 ट्राइंगल, 2 ट्राइंगल, 3, 4 एंड 5 ट्राइंगल्स. क्लियर? इन शेप्स को मिला के हम कई अमेजिंग चीज़ें बना सकते हैं. लाइक हियर, लुक एट द फॉलोइंग शेप. These are made by using 7 pieces of tangram. So ये जितने भी shapes हैं, अलग अलग shapes हैं, ये किससे बनाए गए हैं? Can you guess? ये सब बनाए गए इसी tangram के 7 pieces से. So है ना amazing? You can also try this. Next, patterns. Patterns are everywhere around us. We see them on the carpet, sarees, on windows, and even in nature. Some example of pattern are given below. अगर हम अपने आसपास चीज़ों में देखें तो उन सब चीज़ों में कोई ना कोई पैटर्न है ना? आपको कई चीज़ें ऐसी दिख जाएंगी जिनमें पैटर्न है. लाइक आप विंडो की ग्रिल पे देख सकते हैं. यू कैन सी पैटर्न्स ऑन बेड शीट्स, कारपेट, क्लोथ्स पे आपको दिख जाएगा. नेचर में सो देयर आर सो मैनी पैटर्न्स अराउंड अस. लाइक हियर इन नेचर आप इस तरीके से क्लोथ पे अलग अलग प्रिंटिंग होती है. आप उसमें देखेंगे कि कोई ना कोई चीज रिपीट हो रही है एक सीक्वेंस में. दैट मेक अ पैटर्न. नेक्स्ट, पैटर्न ऑफ शेप्स. सो फर्स्ट हम बात करेंगे शेप से मिला के कैसे पैटर्न बनता है. सो हियर यू कैन सी अ ट्राइंगल देन सर्कल, ट्राइंगल देन सर्कल, ट्राइंगल देन सर्कल एंड देन ट्राइंगल. सो दिस इज अ पैटर्न. पहले ट्राइंगल आएगा, फिर सर्कल, फिर ट्राइंगल, फिर सर्कल. क्लियर? तो इस तरीके से शेप से मिलके एक क्या बना है? पैटर्न. नेक्स्ट पे अगर आप देखेंगे तो एक ट्राइंगल है, देन स्क्वायर, ट्राइंगल, देन अगेन ट्राइंगल, स्क्वायर, ट्राइंगल, ट्राइंगल, स्क्वायर, ट्राइंगल. सो दिस इज द पैटर्न जो यहाँ पे फॉलो हो रहा है. नेक्स्ट, पैटर्न ऑफ साइजेस. अब हम साइजेस के पैटर्न की बात करें. सो हियर यू कैन सी डिफरेंट साइजेस के स्क्वायर है. सबसे छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा और सबसे बड़ा. फिर अगेन सबसे छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, सबसे छोटा, देन उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा. सो दिस इज द पैटर्न फॉलोइंग हियर. क्लियर? इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि सर्कल के साथ भी इसी तरीके की पैटर्न है.
small circle, big circle, and then small circle, then again small circle, big circle, small circle. इस तरीके से पैटर्न जो है रिपीट हो रहा है. नेक्स्ट पैटर्न ऑफ ब्लॉक्स. सो ब्लॉक पे फर्स्ट 1 ब्लॉक, देन 2 ब्लॉक एंड देन 3 ब्लॉक. इन बी पहले क्या है, 1 ब्लॉक है, फिर 3 ब्लॉक आ गए, उसके बाद कितने आ गए, 6 ब्लॉक आ गए. तो इस तरीके से पैटर्न फॉलो हो रहा है. पहले एक नीचे ब्लॉक है, उसके पास एक ब्लॉक, ऊपर ब्लॉक, देन ये आ गया, फिर उसके ऊपर एक ब्लॉक और उसके ऊपर एक ब्लॉक. इस तरीके से पैटर्न फॉलो हो रहा है. नेक्स्ट इज पैटर्न ऑफ नंबर्स. नंबर्स में भी हमें पैटर्न देखने को मिलता है. लाइक हियर 100, 80, 60, 40. सो व्हाट इज द पैटर्न फॉलोइंग हियर. 100 के बाद 80 आ रहा है, मीन्स 100 माइनस 20 दैट इज 80. 80 में से 20 सब्ट्रैक्ट करेंगे, विल गेट 60. 60 में से 20 सब्ट्रैक्ट करेंगे, विल गेट 40. सो दिस इज द पैटर्न फॉलोइंग हियर. सो इस तरीके से सबसे पहले आपको ऑब्जर्व करना है कि व्हाट इज द पैटर्न फॉलोइंग हियर, है ना. जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन में 1 देन 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद 8. क्लियर. सो यहाँ पे क्या किया, 1 में 1 ऐड किया तो 2 आ गया, 2 में 2 ऐड किया तो 4 आ गया, 4 में 4 ऐड किया 8 आ गया, 8 में 8 ऐड किया 16. क्लियर. सो इस तरीके से आपको ऑब्जर्व करना है कि क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन करेंगे. नेक्स्ट एक्सरसाइज 8.3. Look at the following pattern given below. Draw next 2 steps. So सबसे पहले हमें देखना है कि पैटर्न क्या है. So here you can see कि एक तो जो पैटर्न फॉलो हो रहा है वो क्या हो रहा है, शेप्स का भी हो रहा है, कलर्स का भी हो रहा है ना. सो फर्स्ट यू कैन सी एक ओवल शेप है, देन स्क्वायर, देन ओवल, देन स्क्वायर, देन ओवल, देन स्क्वायर एंड देन ओवल. उसके बाद क्या आएगा, स्क्वायर. सो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि कलर्स भी उसके अकॉर्डिंग ही, लाइक ओवल के बाद क्या आ गया है, फर्स्ट रेड ओवल है तो ग्रीन स्क्वायर, अगेन उसके बाद ब्लू ओवल शेप, देन रेड स्क्वायर. तो इस तरीके से पैटर्न फॉलो हो रहा है. तो इस तरीके से आपको बाकी सारे क्वेश्चंस में भी ऑब्जर्व करना है कि क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चंस करेंगे. क्लियर. नेक्स्ट इज look at the following number pattern, write the next number for each. So first we'll see what pattern is following. 0, then 2, then 6, then 12 and then 20. So if we add 2 to 0 we'll get 2. 2 में अगर 4 ऐड करेंगे तो 6. 6 में अगर 6 ऐड करेंगे तो 12 हो जाएगा. 12 में 8 ऐड करेंगे तो 20. 20 में 10 ऐड करेंगे तो 30. 30 में हम क्या करेंगे, 12 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 42. तो इस तरीके से यहाँ पे क्या है, +2, देन +4, +6, +8, +10, +12. क्लियर. सो सबसे पहले हमें देखना है कि पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चंस करेंगे. नेक्स्ट इज सिमेट्री. A figure is said to be symmetrical if one half of this figure is exactly matches with the other part when it is folded. Symmetry क्या होता है, symmetry एक लाइन होती है, imaginary लाइन. So अगर कोई फिगर है उसको हम symmetrical कब कहेंगे, जब उसका वन हाफ दूसरे हाफ के exactly मैच करता हो. अगर हम उसे इस लाइन के along, like this figure, if we fold it along this line, इस लाइन के अलॉन्ग इसको फोल्ड करें तो दिस पार्ट एंड दिस पार्ट को इनसाइड ईच अदर, मतलब एक दूसरे को पूरी तरीके से ओवरलैप कर ले और एक जैसे हो, देन विल से द फिगर इज सिमेट्रिकल. लाइक हियर ये सारे जो फिगर्स है वो सिमेट्रिकल है अलॉन्ग दिस लाइन. क्लियर. द डॉटेड लाइन अबव फिगर शो द प्लेस वेयर दीज फिगर आर फोल्डेड. क्लियर. नेक्स्ट एक्सरसाइज 8.4. Write S for the symmetrical and N for non-symmetrical figure and draw the line of symmetry for the symmetrical figure. So आपको जो symmetrical है figure उनके लिए S लिखना है, जो नहीं है उनके लिए N लिखना है, and you also need to draw a line of symmetry. Clear? So अगर इसकी बात करें तो हम this is symmetrical, इस तरीके से हम एक line of symmetry draw कर सकते हैं. Clear? So we'll write S. इसी तरीके से आप बाकी सारे फिगर्स में you'll find out whether they are symmetrical or they are not. Next, tiling. Look at the following picture given below carefully.
So you see, we see that the above picture are made of shapes that fit into each other without a gap and without overlapping. These are called tiling pictures. So tiling picture में क्या होता है, शेप्स को मिला के एक पैटर्न बनाते हैं, बट जो शेप्स हैं वो एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करेंगे, उनके बीच में कोई गैप नहीं होगा. सो हियर यू कैन सी इन पिक्चर ए बी सी द शेप्स आर नॉट ओवरलैपिंग ईच अदर, मतलब एक दूसरे को कवर नहीं कर रहे, ना ही उनके बीच में कोई गैप है. सो दिस इज कॉल्ड द टाइलिंग पिक्चर. Now look at this picture. Here you can see shape overlap तो नहीं कर रहे, but you can see there is a gap between shapes, है ना. और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वो overlap कर रहे हैं. So we see above picture is made up of shapes that fit into each other, but there is a gap. In figure A, figure B की बात कर रहे हैं तो they are overlapping. So these are not tiling pictures. Clear? Next, exercise 8.5. Which of the following are tiling picture? So if we talk about the first picture में अगर आप देखेंगे तो गैप आ रहा है. You can see gap here. So that means this is not a tiling picture. Second is also not a tiling picture, but third one is tiling picture because उसमें कोई gap नहीं है and they are not even overlapping each other. Clear? So here we end the chapter. I hope ये chapter आपको समझ में आ गया है कि कौन कौन से different shapes होते हैं, what is line of symmetry, how the patterns are formed, number pattern या shape से जो भी pattern बनते हैं. So I hope ये सारे concept आपके clear हो गए. Now you have to practice this chapter.